So let's get going. So as I mentioned in the agenda, we are going to have discussion about options basics. Okay, this is not a session for advanced strategies, etc. of options, but this is basically introduction of options trading. A lot of people are not aware about the basics of options trading, and I keep on getting a lot of queries कि sir ये क्या है, वो selling कैसे करते हैं, margin कैसे करते हैं, what are the different strategies, what are option geeks. So people have got a lot of queries around options trading. So I thought let's have a basic session जिसमें हम लोग कुछ basic foundation details discuss करते हैं. So today's session will be focused upon basics, and then I will have another session which will be on advanced information about options trading. Okay. So first of all, happy Independence Day to everybody. Today is August 15th. So it's really a good day to have the session. Okay. So what we are going to discuss today, I will be basically giving you about brief about what is derivative trading. Okay, then we'll discuss a little bit about futures. Then we'll focus and we'll have detailed discussion about options. And then at the end, we will have question and answer. So before we move, in every training session, this is something that I always like to quote from Warren Buffett. Warren Buffett doesn't need an introduction in the trading and investment area, right? He's one of the most successful investors. So the best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you will earn. And it cannot be more true. आप जितना सीखोगे, आप जितना टाइम स्पेंड करोगे लर्निंग में, उतना आपको अर्निंग में इम्प्रूवमेंट होगा. सो ऑलवेज हैव दैट इन माइंड. And I congratulate all of you and all of us for being part of this session. आज बहुत सारे लोग छुट्टी मना रहे हैं, बट हम लोगों ने टाइम निकाला है और we are spending and investing time for learning. Okay, so investment in learning is the best investment, as Mr. Buffett himself is saying. And then there is another interesting quote: learn every day, but especially from the experiences of others. It is cheaper. तो इसका मतलब क्या है कि आप डेफिनेटली सीखते रहिए, बट अगर जो लोग एक्सपर्ट्स है मार्केट में या जिन लोगों ने ऑलरेडी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, ट्रायल एंड एरर किया है, उनसे सीखिए. खुद ट्रायल एंड एरर करके और खुद लॉसेस बेयर करके मत सीखिए. ओके, सो दैट इज अनदर interesting and smart way to look at it. Quick background about myself. So my name is Ritin Chaudhary, for those of you who do not know, and I run RGS Consulting for last 7 years, and we are having different investment related services and offerings. I am personally expert or trained in options trading and in portfolio design and management. And as you are seeing, I also take trainings for technical analysis and fundamental analysis. Before getting into wealth management business, I did work and I had jobs in IT industry for almost 15 years. I worked with MNCs like Cisco, Accenture, etc. So I have around 15 years of corporate business background, and after that I got into the wealth management field. So what is derivative trading? So now we start. Okay. अभी सबको पता होगा कि हम लोग स्टॉक्स बाय करते हैं, राइट? आई मीन इन ट्रेडिंग यू कैन बाय स्टॉक्स एंड डू बाइंग सेलिंग एक्सेट्रा. लेट्स से आप टाइटन का स्टॉक बाय कर रहे हो और उसमें बाइंग सेलिंग कर रहे हो, बट इफ यू आर बाइंग एन ऑप्शन और फ्यूचर्स ऑफ टाइटन एंड नॉट बाइंग द टाइटन स्टॉक इटसेल्फ, तो उसको बोलते हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग. तो मतलब क्या है, लेट्स से आप 10,000 रुपए लगा रहे हो टाइटन के स्टॉक में. अभी टाइटन के स्टॉक का रेट चल रहा है अराउंड 2700 2800. तो अगर आप 10,000 रुपए लगाते हो और अगर टाइटन का स्टॉक 1% से बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट होगा 100 रुपीज. ओके, वही अगर आप ऑप्शन लेते हो या फ्यूचर्स लेते हो टाइटन का, तो आपको जो प्रॉफिट होगा, अगर टाइटन का स्टॉक 1% बढ़ता है, तो अगर इंस्टेड ऑफ द टाइटन स्टॉक इफ यू आर बाइंग ऑप्शन और डेरिवेटिव ऑफ टाइटन, तो आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा. यानी यहाँ पे 1% पे 10,000 रुपए के ऊपर आपको 100 रुपए मिलेगा. वेराज
इन केस ऑफ ऑप्शन और इन केस ऑफ फ्यूचर्स वही 1% अगर टाइटन का स्टॉक बढ़ता है तो आपको हो सकता है कि 10,000 रुपए के ऊपर 1,000 रुपए मिलेगा. सो इंस्टेड ऑफ 100 यू विल अर्न 1,000 रुपीज. तो अगर इसका मैं आपको थोड़ा डीमैट अकाउंट के थ्रू एग्जांपल दूं, तो लेट्स से हम लोग स्टॉक्स में अगर जाते हैं, तो दिस इज बेसिकली आईसीआईसीआई डायरेक्ट डीमैट अकाउंट, एंड यू प्लेस ऑर्डर हियर, you go to NSE, you place buy or Titan. Okay, let's say you are buying three quantities and you are putting a limit order. लिमिट ऑर्डर का मतलब होता है कि अगर रेट नीचे जाएगा तो आपको बाइंग होगा. ओके, सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग हियर इज बाइंग द स्टॉक ऑफ टाइटन. ओके, अभी इंस्टेड ऑफ बाइंग द स्टॉक ऑफ टाइटन, अगर आप उसका डेरिवेटिव लेते हो, तो डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि यू कैन गो टू F&O and then you have the option of placing order for futures or placing order for options. Okay, तो बेसिकली आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू टू द कंसेप्ट कि भाई रेगुलर स्टॉक बाइंग सेलिंग में और डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस है. सो व्हेन यू आर बाइंग अ प्लेन स्टॉक, देन इट इज रेगुलर बाइंग सेलिंग इन कैश, उसको कैश सेगमेंट बोलते हैं, डिलीवरी सेगमेंट बोलते हैं. एंड व्हेन यू आर बाइंग समथिंग इन द डेरिवेटिव सेगमेंट, सो विच इज फ्यूचर एंड ऑप्शन, सो यहाँ पे आप इन फ्यूचर एंड ऑप्शन यू कैन बाय आइदर अ फ्यूचर और यू कैन बाय ऑप्शन. ओके, तो ये पॉइंट समझ में आया सबको? एनीबॉडी हैज एनी क्वेरी? आपको डेरिवेटिव का कंसेप्ट समझ में आया? कैन आई हैव सम कंफर्मेशंस इन द चैट बॉक्स? अगर आपको उसमें कुछ क्वेरी है तो आई कैन टेक 1 or 2 क्वेश्चंस. ओके, आई गॉट सम कंफर्मेशंस, एवरीबॉडी इज क्लियर, थैंक यू. So next, go to the next point. Now futures. Now in derivative trading, there are two options or two type of trades which you can take. One is futures, another is options. Okay, we are going to focus more upon options today, but I will quickly cover what is futures. Okay, तो हमने टाइटन का एग्जांपल देखा. तो यहाँ पे अगर आप फ्यूचर में जाते हो, ओके, दिस इज द ऑर्डर मैनेजमेंट पेज ऑफ आईसीआईसीआई डायरेक्ट फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग. टाइटन का एग्जांपल लेते हैं. तो यहाँ पे आपको ये फ्यूचर के अलग अलग ऑप्शन है. सो एंड व्हाट यू आर सेइंग हियर इज 31 अगस्त इज द एक्सपायरी डेट. एक्सपायरी डेट मतलब जब वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है उसको बोलते हैं एक्सपायरी डेट. मिनिमम लॉट साइज इज 375. ओके, एंड यू वांट टू बाय लेट्स से द ऑप्शन. तो यहाँ पे आपको मार्जिन लगने वाला है 2,09,346. अभी फ्यूचर्स का बेसिकली पॉइंट ये होता है कि फ्यूचर में आपको लेवरेज के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट मिलता है. ओके, व्हेन आई से लेवरेज, अभी लेवरेज इज वन मोर कंसेप्ट जिसको हम लोग अलग से डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, बट आप एक वर्ड याद में रखिए, लेवरेज. तो जितना आपका लेवरेज है उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है. बट फ्यूचर्स में आपका टेक्निकल एनालिसिस बहुत स्ट्रांग चाहिए, प्लस यू रिक्वायर लॉट ऑफ फंड्स आल्सो. So that is why normally most of the traders prefer doing options instead of futures. Okay, तो फ्यूचर्स में आपका प्रॉफिट भी अनलिमिटेड है और लॉस भी अनलिमिटेड है अगर इफ यू आर गोइंग फॉर अ नेकेड पोजीशन, प्लस आपको उसमें मार्जिन ज्यादा लगती है. फ्यूचर्स का मतलब ये है, एज आई टोल्ड यू, जो अंडरलाइंग एसेट है, लेट्स से टाइटन का प्राइस बढ़ता है और आपने बाय किया तो आपको प्रॉफिट होगा. अगर टाइटन का प्राइस बढ़ता है तो आपका फ्यूचर्स पोजीशन अगर आपने बाय किया है तो प्रॉफिट होगा. अगर आपने बाय मिस्टेक सेल किया है और अगर आपका टाइटन का प्राइस बढ़ रहा है तो आपको लॉस होगा. सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सिमिलरली अगर आपने सेल किया और टाइटन का प्राइस नीचे जा रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा. अगर आपने सेल किया है और टाइटन का प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो आपको लॉस होगा. सो दैट इज हाउ नॉर्मली द फ्यूचर्स वर्क. ओके, सो फ्यूचर्स में प्रॉफिट और लॉस दोनों अनलिमिटेड है.
वन एडवांटेज ऑफ फ्यूचर्स ओवर ऑप्शंस इज बेसिकली फ्यूचर्स में डीके नहीं होता है. डीके एक ऑप्शंस ट्रेडिंग का कंसेप्ट है. अगेन इट्स एन एडवांस कंसेप्ट. आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स, बट आई पे वर्ड या टर्म आप ध्यान में रखिए. तो फ्यूचर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि उसमें डीके नहीं होता है, वेराज ऑप्शंस में डीके होता है. तो अगर आपके पास में फंड्स है और आपका टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रांग है तो आप फ्यूचर्स कर सकते हो. अगर आपको लिमिटेड फंड में काम करना है या अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज लिमिटेड है तो यू कैन गो फॉर ऑप्शंस. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल प्रीफर डूइंग ट्रेडिंग इन ऑप्शंस बिकॉज ऑप्शंस में आपको काफी सारी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है. सो लेट्स मूव ऑन टू ऑप्शंस. सो व्हाट इज ऑप्शंस? ओके, अभी ऑप्शन का मतलब ये है कि अभी उसके नाम में ही ऑप्शन है. व्हेन यू आर बाइंग और सेलिंग अ पर्टिकुलर एसेट, तो आपको अगर आपने उसको सेल किया हुआ है एट अ पर्टिकुलर लेवल तो लोअर वैल्यू के ऊपर आप बाय कर सकते हो, आपको ऑप्शन रहता है. उसका वैल्यू अगर नीचे गया तो आपका प्रॉफिट होता है. सिमिलरली अगर आपने उसको बाय किया हुआ है और अगर आपको ऑप्शन का जो अंडरलाइंग एसेट है और ऊपर जा रहा है तो यू मेक अ प्रॉफिट. So that is the basic concept of options. I don't want to get into the details of what is options क्योंकि वो एक काफी कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है वैसे अगर आप डिटेल में जाओगे तो. बट एज अ ट्रेडर हमारे लिए, एज अ ट्रेडर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो इतना ही समझना जरूरी है कि ऑप्शन इज अ टाइप ऑफ डेरिवेटिव ट्रेडिंग. और ऑप्शन में दो टाइप के ट्रेड्स आप ले सकते हो, एक होता है कॉल, एक होता है पुट. ओके, कॉल का मतलब ये है कि अगर आप कॉल बाय कर रहे हो और अगर आपका अंडरलाइंग एसेट ऊपर जा रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा. अगर आपका अंडरलाइंग एसेट नीचे जाने का अगर आपको आपको लग रहा है कि आपका अंडरलाइंग एसेट नीचे जा रहा है, हम जो टाइटन का एग्जांपल ले रहे हैं अगर टाइटन नीचे जा रहा है और अगर आपने पुट बाय किया तो आपको प्रॉफिट होगा. तो बेसिकली समझने की बात यह है कि पुट जो होता है वो शॉर्टिंग के लिए यूज हो रहा है. शॉर्टिंग यानी अगर आपका अंडरलाइंग एसेट नीचे जा रहा है, अगर आपने पुट बाय किया है तो आपको प्रॉफिट होगा. अगर आपका अंडरलाइंग एसेट ऊपर जा रहा है, अगर आपने कॉल बाय किया है तो आपको प्रॉफिट होगा. अगर उल्टा होता है, आपने कॉल बाय किया हुआ है और आपका अंडरलाइंग एसेट जो है वो नीचे जा रहा है तो आपको लॉस होगा. सिमिलरली अगर आपने पुट बाय किया है और अगर आपका अंडरलाइंग एसेट ऊपर जा रहा है तो आपको लॉस होगा. ओके, सो ये कॉल और पुट का डिफरेंस है. ये शो यू एन एग्जांपल. तो यहाँ पे हम लोग ऑर्डर मैनेजमेंट ऑप्शंस में अगर जाते हैं तो यू सिलेक्ट टाइटन हियर एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, स्पॉट प्राइस चल रहा है 3017. टाइटन का स्पॉट प्राइस अभी चल रहा है 3017. अगर आपको लगता है कि इसका प्राइस ऊपर जाने वाला है तो आपको कॉल बाय करना चाहिए. अगर आपको लगता है कि इसका प्राइस नीचे जाने वाला है तो आपको पुट बाय करना चाहिए. एज यू कैन सी देयर आर टू ऑप्शंस हियर, कॉल ऑप्शन है और पुट ऑप्शन है. ओके, अभी लेट्स से कॉल अगर हमको बाय करना है, यहाँ पे जो तीन टर्म्स मेंशन किए, आउट ऑफ द मनी, क्लोज टू द मनी एंड इन द मनी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. we'll talk about that in detail later after in the next slide. तो लेट्स से आप बाय कर रहे हो, आपको कॉल बाय करना है, करंट प्राइस चल रहा है 3000. सो विल गो टू द क्लोज टू द मनी ऑप्शन. क्लोज टू द मनी यानी ये 3000 यानी 3000 स्ट्राइक प्राइस है, करंट प्राइस चल रहा है 3017. सो दिस इज क्लोज टू द मनी एंड यू आर बाइंग. मिनिमम क्वांटिटी इज 375, करंट प्राइस चल रहा है 58. यहाँ आपको आपको मार्जिन लगेगा 21,993. ओके, तो ये सबको समझ में आया हाउ टू बाय एन ऑप्शन. तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से कॉल बाय कर सकते हैं. तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, टाइटन 31 अगस्त यानी इसका एक्सपायरी है 31 अगस्त का, 3000 यानी स्ट्राइक प्राइस है 3000. एंड सी का मतलब होता है यू आर बाइंग अ कॉल. व्हाट इज द मार्जिन रिक्वायर्ड? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मार्जिन रिक्वायर्ड इज 21,993. यू आर सिंपली बाइंग अ कॉल. तो बेसिकली आपका जो क्वांटिटी है इसको अगर आप करंट प्राइस से यानी जो प्रीमियम का प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट द मार्जिन.
ओके, सिमिलरली आप पुट भी बाय कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि ये प्राइस टाइटन का नीचे जाने वाला है, तो यू कैन गो टू कॉन्ट्रैक्ट, सिलेक्ट पुट, क्लोज टू द मनी। अभी देखिए पुट का जो प्राइस चल रहा है 3000 के आसपास, वो 37 रुपीज चल रहा है। ओके, तो प्रीमियम में काफी डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको प्रीमियम लगेगा 13,875। तो आप आईसीआईसीआई डायरेक्ट में आपको फैसिलिटी की आप आउट ऑफ द मार्केट, ऑफ द मार्केट भी ऑर्डर लगा सकते हो। जैसे अभी आज छुट्टी है मार्केट को, बट आप ऑर्डर यहाँ पे लगा सकते हो। लेट से आप लिमिट ऑर्डर लगा रहे हो, करंट प्राइस चल रहा है 37, आपको लगता है कि ये प्रीमियम नीचे जा सकता है 30 रुपीज के ऊपर, तो यू प्लेस अ बाय, प्रोसीड। तो ये ऑर्डर बुक में आपका ऑर्डर लग गया। यू कैन सी टाइटन अगस्त एक्सपायरी, पुट क्वांटिटी 375, लास्ट ट्रेडेड प्राइस इज 37, आपने प्राइस लगाया हुआ है 30 रुपीज का। ओके, सिमिलरली आप कॉल का भी ऑर्डर लगा सकते हो। गो हियर, ऑर्डर टाइप में आप यहाँ पे ऑप्शन टाइप में सीई सिलेक्ट कीजिए, कीप द स्ट्राइक प्राइस सेम एंड यू प्लेस अ बाय ऑर्डर। लेट से आप 45 रुपीज का प्राइस आप लगा रहे हो, प्लेस ऑर्डर, प्रोसीड। अभी यहाँ पे मार्जिन कम है फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड, सो वी कैन जस्ट स्किप दिस। कमिंग बैक, तो ऑप्शंस में आप कॉल बाय कर सकते हो, पुट बाय कर सकते हो। बेसिकली दीज आर द टू टाइप ऑफ ट्रेड्स इन ऑप्शंस, कॉल एंड पुट। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एक्सपायरी और स्ट्राइक प्राइस। अभी इसका क्या मीनिंग है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। स्पेशली अगर आप निफ्टी के केस में देखोगे, तो इट विल गिव यू मोर क्लैरिटी। अभी एक्सपायरी निफ्टी, बैंक निफ्टी में वगैरह वीकली रहता है, एंड स्टॉक्स में जो रहता है वो मंथली रहता है। बेसिकली आपको दो टाइप के एसेट्स अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए, एक तो इंडाइसेस है और स्टॉक्स है, यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सब जो है निफ्टी आईटी, दीज आर ऑल इंडाइसेस। वेरेज आप जब इंडिविजुअल स्टॉक में ट्रेड करते हो, तो वो जैसे हमने टाइटन का एग्जांपल लिया, तो इट इज अ स्टॉक ट्रेड एंड इंडाइस ट्रेड। तो इंडाइसेस में मोस्टली वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी, क्वार्टरली एक्सपायरी, तीनों ऑप्शन होते हैं। स्टॉक्स में जो है मोस्टली आपको मंथली एक्सपायरी मिलेगा। तो एक्सपायरी का जो डेट है वो इंपॉर्टेंट होता है। लेट से आप अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हो, और उसका जो एक्सपायरी होता है वो थर्सडे को होता है, टुडे वी आर ऑन ट्यूसडे, लेट से कल मार्केट ओपन होता है, और आप अगर थर्सडे के एक्सपायरी का, यानी इस वीक के एक्सपायरी का कोई पोजीशन लेते हो, तो उसमें डीके फास्ट होगा, उसमें वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा रहेंगी। अगर आपका ट्रेड सही चलता है तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, अगर आपका ट्रेड गलत गया तो उसमें आपको पूरा लॉस भी हो सकता है। अगर आपको थोड़ा टाइम बाय करना है, तो यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट वीक एक्सपायरी एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक एक्सपायरी। तो उसमें आपको प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अभी इसका क्या मतलब होता है, आई जस्ट एक्सप्लेन। वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ निफ्टी हियर। लेट से आपको निफ्टी का पुट बाय करना है, करंट स्ट्राइक प्राइस इज 19,434 एंड 19,400 या 19,450 इज इन द मनी। अभी देखिए 17 अगस्त का जो एक्सपायरी है, इन द मनी 19,450, इसका प्राइस चल रहा है 70 रुपीज। लेट्स से वी कैन पुट अ लिमिट ऑर्डर हियर, जस्ट फॉर द एग्जांपल सेक। ओके, तो देखिए ये 70 रुपीज का प्राइस चल रहा है फॉर दी 17 अगस्त एक्सपायरी फॉर 19,450 पी।
अभी अगर हम इसका नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी का प्राइस देखते हैं तो आपको डिफरेंस पता चलेगा. सेम एक्सपायरी, बट विल गो फॉर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक. तो देखिए 19450 स्ट्राइक प्राइस इज द सेम. एक्सपायरी डेट चेंज हुआ है तो प्रीमियम चेंज हुआ है. जो 17 अगस्त है इसका प्रीमियम है 70 रुपीज, और जो 24 अगस्त है इसका प्रीमियम है 116 रुपीज. अभी इसका मतलब क्या है? बेसिकली आप 17 अगस्त के एक्सपायरी का पोजीशन ले रहे हो तो आपको प्रीमियम कम लग रहा है, बट आपका रिस्क भी ज्यादा है. रिस्क ये ज्यादा है कि अगर आपको आपका पोजीशन वेनसडे को लेट से आप ट्रेड में एंटर करते हो और आपका पोजीशन अगर बराबर नहीं जाता है, आपका डायरेक्शन गलत होता है, तो आपका लॉस का चांसेस बहुत बढ़ जाता है. वेयर इफ यू गो फॉर 24 अगस्त एक्सपायरी तो आपको टाइम ज्यादा मिलता है. सिंस आपको टाइम ज्यादा मिल रहा है तो इसलिए आपको प्रीमियम भी ज्यादा देना पड़ेगा. तो यहाँ पे आपका रिस्क कम है बट प्रीमियम ज्यादा आपको देना पड़ेगा. सो दैट इज द डिफरेंस. एंड एज पर योर जजमेंट आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको कौन सा एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करना चाहिए. ओके, सो दैट इज व्हाई दिस एक्सपायरी डेट एंड स्ट्राइक प्राइस, दिस टू पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इज एवरीबडी क्लियर विद दिस? कुछ क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो. आई विल टेक अ पॉज फॉर अ मिनट. एक क्वेरी आया है, ये ऑप्शन सेलिंग में कैसे वर्क करता है. ऑप्शन सेलिंग विल डिस्कस इन डिटेल, थोड़ा अलग टॉपिक है. ओके, व्हाट हैपन इफ वी होल्ड आफ्टर एक्सपायरी, ऐसे क्वेश्चन आए हैं. देखिए अभी यू कैन नॉट होल्ड इट आफ्टर एक्सपायरी क्योंकि ये ऑटोमेटिकली पोजीशन क्लोज हो जाती है. ये आपका एक्सपायरी का जो डेट है 17 अगस्त से 24 अगस्त, तो 3:30 को मार्केट क्लोज होता है. थर्सडे को 3:30 को जो भी मार्केट प्राइस रहेगा उस मार्केट प्राइस के ऊपर आपका पोजीशन क्लोज हो जाएगा बाय डिफॉल्ट. देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी. ओके, लेट्स मूव ऑन. अभी ये मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट समझाता हूँ मनीनेस का. मनीनेस का मतलब ये होता है कि ऑप्शंस में जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, व्हेन यू आर प्लेसिंग एन ऑर्डर, सिलेक्ट कॉन्ट्रैक्ट. तो ये जो यहाँ पे मेंशन किया है, आउट ऑफ द मनी, क्लोज टू द मनी एंड इन द मनी, तो दिस इज कॉल्ड एज मनीनेस इन ऑप्शंस ट्रेडिंग. अगेन एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट टू नो एंड इम्पोर्टेंट थिंग इन ऑप्शंस ट्रेडिंग. अभी आप आउट ऑफ द मनी अगर जाओगे तो आपको प्रीमियम कम लगेगा. आप क्लोज टू द मनी जाओगे तो आपको प्रीमियम थोड़ा ज्यादा लगेगा, और इन द मनी जाओगे तो प्रीमियम आपको सबसे ज्यादा लगेगा. ओके, अभी आगे आप देखिए आउट ऑफ द मनी के कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं फॉर 17 अगस्त. तो करंट रेट चल रहा है 14,434 एंड दिस इज पुट. ओके, पुट है ना, जहां पे आपको अगर आपका एसेट नीचे जा रहा है तो आपको पुट में प्रॉफिट होता है. ओके, तो 19,400 पे जाओगे तो आपको प्रीमियम है 50. 19,350 पे जाओगे तो प्रीमियम इज 33, सो ऑन एंड सो फोर्थ. जैसे जैसे आप करंट प्राइस से दूर जाओगे, आउट ऑफ द मनी जाओगे, आपका प्राइस प्रीमियम आपका कम कम होता जाएगा. तो इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट ये है कि आपको कम से कम प्रीमियम में पोजीशन मिल रहा है. अगर लेट से अभी प्राइस चल रहा है 19,434 या 19,450 पकड़ते हैं, और अगर ये नीचे जाता है प्राइस, लेट से आपने 22 रुपीज का बाय कर लिया, तो आपको इसके ऊपर अच्छा प्रॉफिट हो सकता है.
बट एट द सेम टाइम अगर ये प्राइस ऊपर गया, आपका ट्रेड गलत हो गया, तो आपको इसमें पूरा का पूरा आपका पैसा जाएगा, बट आपका लिमिटेड पैसा लगा हुआ है। तो काफी सारे लोग लो रिस्क स्ट्रेटेजी के हिसाब से ऐसे ट्रेड्स देते हैं। सो दिस आर टिपिकली हीरो और जीरो ट्रेड्स, जो ट्रेडिंग के लैंग्वेज में बोलते हैं हीरो और जीरो। एक तो आपको जैकपॉट लगेगा, या फिर आपका पैसा पूरा चला जाएगा। सो दैट इज आउट ऑफ द मनी। देन देर इज क्लोज टू मनी। क्लोज टू मनी आप देखिए 14,434 चल रहा है, इसके आसपास का जो प्राइजेस है। सो 350 33 रुपीज, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो आपका प्रीमियम बढ़ते जाएगा। दिस इज फॉर पुट व्हाट वी आर डिस्कसिंग, ओके। तो 450 का है 70, 19,500 का इज 100। तो जैसे जैसे आप क्लोज टू द मनी जाओगे, आपका प्रीमियम बढ़ते जाएगा। क्लोज टू द मनी का एडवांटेज ये है कि जितना मूवमेंट आपके डायरेक्शन में होगा, आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा और फास्ट होगा। ओके, आउट ऑफ द मनी में आपको प्रॉफिट कम होगा और आपका प्रॉफिट स्लो होगा। वेर क्लोज टू द मनी आपको प्रॉफिट फास्ट होगा, ज्यादा होगा, बट रिस्क भी ज्यादा है, क्योंकि आप प्रीमियम ज्यादा दे रहे हो। अगर आपका डायरेक्शन गलत हो गया तो आपको फिर लॉस के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इन द मनी, इन द मनी इज बेसिकली अभी का जो प्राइस चल रहा है उसके ऊपर का अगर आप पोजीशन ले रहे हो, प्रीमियम ले रहे हो, सो दैट इज इन द मनी। तो 19,434 इज द करंट प्राइस। अगर आप सीधा ऊपर जा रहे हो 19,550 19,600, दीज आर ऑल इन द मनी। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्रीमियम ज्यादा है। एक कंसेप्ट होता है वॉल्यूम का। ओके, आपको नॉर्मली वॉल्यूम जो है वो सबसे ज्यादा मिलेगा एट द मनी में। अभी 19,450 करंट, 19,434 करंट प्राइस चल रहा है, तो एट द मनी इज 19,450। तो ये 70 रुपीज जो है, यहाँ पे देखिए अब वॉल्यूम जो है वो कितना ज्यादा है। सो इट इज 6,11,43,950 कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड। सो वेरी हाई वॉल्यूम, ओके। वही अगर हम कोई और पोजीशन देखते हैं, अगर आप इसका देखोगे आउट ऑफ द मनी 19,350, इसका वॉल्यूम देखना बहुत कम रहेगा। सो हियर द वॉल्यूम इज 14 करोड़। ओके, इसमें वॉल्यूम ज्यादा है, ज्यादा ही है, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन द लो प्रीमियम। अगर ऊपर की तरफ जाते हैं इन द मनी में, तो यहाँ पर भी वॉल्यूम काफी ज्यादा है, बिकॉज इट्स क्लोज टू द मनी। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम एकदम कम है। ओके, तो आप जितना ज्यादा एक्सपायरी, जितना ज्यादा आप स्ट्राइक प्राइस से, करंट प्राइस से दूर जाओगे, आपको वॉल्यूम कम कम होते जाएगा। तो आप जो भी पोजीशन ले रहे हो उसमें वॉल्यूम अच्छा होना जरूरी है। अगर वॉल्यूम अच्छा नहीं है तो वो पर्टिकुलर ऑप्शन में आपको लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, या आपको उसमें प्रॉफिट फास्ट होगा, फास्ट नहीं होगा, या आपका प्रॉफिट स्लो होगा। ओके, so I hope everybody is clear with this concept: in the money, at the money, and out of the money. Any doubt on this, you can ask me. So there is a question: normally कौन सा position लेना चाहिए? So I will suggest normally आप near the money या at the money का position लो, and go for the next week expiry, not the current week expiry. Okay, ये अगर आप option buying कर रहे हो, तो it is a safer way of taking the trades in option buying. So अगर मुझे ऑप्शन बाय करना है, लेट्स से अगर मुझे पुट बाय करना है, तो आई विल नॉट गो फॉर द इमीडिएट एक्सपायरी, आई विल गो फॉर नेक्स्ट वीक एक्सपायरी। एंड 19,434 जो है, तो 19,434 के आसपास का मैं प्रीमियम लूंगा। सो दिस इज द पोजीशन आई विल प्रीफर। ये पोजीशन में आपको प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, रिस्क कम है, आपके पास में टाइम भी है। तो वेदर इट इज अ पुट और अ कॉल। ओके, अभी आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, हेजिंग। अभी हेजिंग का क्या मतलब है? अभी देखिए, आपने ये लेट से बाय किया पोजीशन, फॉर एग्जांपल से आई एम गिविंग हियर 1 रुपी।
ओके, अगर आपने 116 रुपए का पोजीशन बाय किया, पुट बाय किया, आपको लगता है कि ये निफ्टी नीचे जाएगा इसलिए आपने 116 का बाय किया, बट अगर ये नीचे नहीं गया और ऊपर गया तो ये आपके 116 रुपए जो है वो जीरो भी बन सकते हैं। ओके, अभी एक कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान में रखिए कि ऑप्शन जब आप बाय करते हो तो आपका जो प्रॉफिट का जो प्रोबेबिलिटी है वो तो मार्केट के हिसाब से चलेगा, बट आपका मैक्सिमम रिस्क डिफाइंड है। आपका मैक्सिमम रिस्क ये है कि 116 रुपये आपका जा सकता है, उसके ऊपर आपको लॉस नहीं होगा। तो जो भी आपने यहाँ पे प्रीमियम दिया हुआ है, लेट से 5,000 रुपये का अगर आपका प्रीमियम है तो आपका मैक्सिमम लॉस जो है वो 5,000 रुपये है। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड है, जितना ऊपर जाएगा आपका 5,000 का 10,000 भी हो सकता है, 15,000 भी हो सकता है। सो मैक्सिमम प्रॉफिट इज अनलिमिटेड बट मैक्सिमम लॉस इज लिमिटेड। मैक्सिमम लॉस इज लिमिटेड, दैट इज इन केस ऑफ ऑप्शन बाइंग। बट अगर ये उल्टा जाता है आपका ट्रेड, ओके, आपका ट्रेड अगर उल्टा जाता है तो फिर आपको हेजिंग करना चाहिए। अभी हेजिंग कैसे करते हैं उसके लिए मैं आपको थोड़ा एक दूसरा साइट दिखाता हूँ।
Oh, sorry, by mistake I went on mute. Am I audible now? Okay, thanks. So basically, I was explaining the hedging concept. Okay. So I think since you missed it, I'll repeat it. तो आपने एक पुट बाय किया है एट द मनी का, ये येलो लाइन जो दिखा रहा है आपको, एट द मनी दिखा रहा है, आपने 112 रुपए का पुट बाय किया। तो यहाँ पे आपको लॉस जो है वो लिमिटेड है। आपका मैक्सिमम लॉस प्री डिफाइंड है 5,600 रुपये, और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो अनडिफाइंड है। आई मीन यू कैन हैव वॉट एवर मैक्सिमम प्रॉफिट पॉसिबल। 5,000 का आपका 10,000 भी हो सकता है, 15,000 भी हो सकता है। मैक्सिमम लॉस इज 5,000। अब ये मैक्सिमम लॉस 5,000 अगर आपको रिड्यूस करना है या मिनिमाइज करना है, तो आप उसको फिर हेज कर सकते हो। हेज का मतलब क्या है कि आपने 112 रुपये का ये पुट का प्रीमियम पे किया है, तो आप उसको लोअर वैल्यू का कॉल का प्रीमियम बाय कीजिए। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हेजिंग। बेसिकली आप जो प्राइमरी डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप थोड़ा पैसा लगा दीजिए। आपने लेट्स से अगर 10,000 रुपया आपने लॉन्ग के लिए लगाए, कॉल के लिए लगाए, तो मे बी 3-4 हज़ार रुपया आपको शॉर्ट साइड के लिए लगाना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपका ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कम होगा, बट आपका रिस्क भी कम होगा। यहाँ पे मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है 8,600। उसका मतलब है कि ये दोनों कॉल और पुट अगर जीरो हो गए तो आपको इतना लॉस होगा। दोनों जीरो होने के चांसेस बहुत कम है, अनलेस यू वेट फॉर द एक्सपायरी डे, या मार्केट वही के वही रुकता है और एक्सपायरी डे पे आप पहुंचते हो, तो फिर आपका ये जीरो हो सकता है। अदरवाइज अगर एक एक डायरेक्शन में मार्केट जाएगा तो दोनों में से एक आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। सो दिस इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ हेजिंग। ऑल्दो बाइंग बाइंग अ लोअर प्रीमियम इज नॉट द बेस्ट वे ऑफ हेजिंग। हेजिंग का जो बेस्ट वे होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। ऑप्शंस में आपको दो ऑप्शन होते हैं या दो चॉइसेस होते हैं। यू कैन बाय एन ऑप्शन और यू कैन सेल एन ऑप्शन, राइट, एज यू कैन सी हियर। यहाँ पे देखिए, आप इसको सेल भी कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो। तो लेट अस लुक ऑन ऑप्स्ट्रा, दैट इज इजियर टू अंडरस्टैंड। ओके, सो वी गो टू बिल्डर। देखिए, ये सेम अगर हम लोग एग्जांपल देते हैं, लेट्स से यू आर बाइंग। ओके, आप बाय कर रहे हो पुट को 112 का एट पोजीशन। तो यहाँ पे आपको प्रीमियम कितना लग रहा है? 5,600 रुपये। ओके, ये थोड़ा ध्यान से समझिए, प्लीज पे अटेंशन हियर। सो 5,600 लग रहा है आपको बाइंग के लिए। अब इंस्टेड ऑफ बाइंग, अगर आप सेलिंग करते हो, ओके, तो आपको प्रीमियम लग रहा है 1,04,000 रुपया। सो फॉर सेलिंग यू रिक्वायर मच हायर प्रीमियम कंपेयर टू बाइंग। बट सेलिंग करना क्यों है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग? तो बाइंग में क्या होता है कि आप जब भी बाय करते हो, अगर आपका डायरेक्शन अगर सही निकला तो आपको प्रॉफिट होगा। बट अगर आपका डायरेक्शन नहीं बराबर नहीं निकला, या फिर मार्केट वहीं पे रुक गया, तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। सो दैट इज वाई सेलिंग इज अनदर वे ऑफ डूइंग द ट्रेडिंग। अभी सेलिंग में बेनिफिट ये है कि सेलिंग करने के बाद में मार्केट में आपको तीन सिनेरियो रहेंगे। लेट से आपने पुट बाय किया है, पुट सेल किया है। पुट सेल किया मतलब क्या है कि अगर मार्केट ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ऊपर अगर गया तो यू विल बी इन ग्रीन, अगर नीचे गया तो यू विल बी इन लॉस। तो सेलिंग और बाइंग का कंसेप्ट जो एग्जैक्टली अपोजिट है।
सेलिंग में लॉस अनलिमिटेड होता है, बाइंग में लॉस लिमिटेड होता है। सेलिंग में प्रॉफिट लिमिटेड होता है, वेर एज बाइंग में प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। सो एग्जैक्टली अपोजिट कंसेप्ट है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज ऑलवेज हायर इन सेलिंग। देखिए यहाँ पे 59% 60% का प्रोबेबिलिटी है, वेर एज हमारे बाइंग में जो था द प्रोबेबिलिटी वाज अराउंड 40% और 45%। तो ऐसा क्यों होता है? तो जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो, लेट से अगर आपने लॉन्ग पोजीशन लिया है, लॉन्ग पोजीशन मतलब आपको लग रहा है कि आपने यहाँ पे पुट सेल किया, आपको लग रहा है कि मार्केट निफ्टी ऊपर जाने वाला है एंड अगर निफ्टी ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट होगा। तो अगर निफ्टी ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर निफ्टी वही के वही रुकता भी है तब भी आपको प्रॉफिट होगा। ओके, यानी अगर निफ्टी ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर निफ्टी वही के वही रुकता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं दिया तो भी आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल कॉल बाय किया हुआ है और निफ्टी ऊपर नहीं गया तो आपको लॉस होगा, ऑल्दो नीचे नहीं गया फिर भी आपको लॉस होगा, बिकॉज ऑफ डिके। डिके का जो कंसेप्ट होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट गेटिंग यू द डिटेल्स ऑफ डीके राइट नाउ, वो जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें डिस्कस करेंगे। बट ये डीके की वजह से ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। और थर्ड सिनेरियो है कि भाई आपने तो लॉन्ग किया है बट निफ्टी नीचे गया, तो अगर नीचे जाता है तो आप उसको स्टॉप लॉस लगा सकते हो या फिर हेज कर सकते हो। तो तीन में से दो सिनेरियो में ऑप्शन सेलर जो है प्रॉफिट कमाएगा। अगर आपका डायरेक्शन राइट रहा तब भी आप प्रॉफिट कमाओगे, अगर मार्केट वही के वही रुकता है, रेंज बाउंड रहता है, तब भी आप प्रॉफिट कमाएंगे बिकॉज ऑफ द डीके। ओके, सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ ऑप्शन सेलिंग। तो अभी यहाँ पे देखिए कि आपको मार्जिन बहुत ज्यादा लग रहा है, अगर ये मार्जिन रिड्यूस करना है तो पहले तो आपको हेजिंग करना चाहिए। तो हेजिंग करने के लिए आपको क्या करना है कि आपने अगर ये 112 का सेल किया हुआ है तो आपको 30 रुपए का 40 रुपए का पुट बाय करना चाहिए, दैट विल गिव यू हेजिंग। लेट से हमें 37 रुपीज का पुट बाय करते हैं। अभी देखिए ये पुट बाय करने की वजह से क्या हो गया कि बहुत सारा डिफरेंस हो गया। आपका जो मैक्सिमम लॉस पहले अनडिफाइंड था वो अभी लिमिटेड हो गया, यानी आपका मैक्सिमम लॉस इज 8740। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो था वो कम हो गया है, बट दैट इज ओके। आपका मैक्सिमम लॉस कम हो गया है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपका जो मार्जिन था, क्योंकि आपने हेज कर लिया है तो आपका मार्जिन भी कम हो गया। जो आपका मार्जिन 1,05,000 रुपए था, अभी आपका मार्जिन हो गया 30,000। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ हेजिंग, आपका रिस्क भी कम हो जाता है। एंड इफ यू आर प्रिफरिंग टू डू ऑप्शन सेलिंग, आपका यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट भी ड्रास्टिकली कम हो जाता है, तो आप कम फंड्स में ट्रेड ले सकते हो। तो इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? इसमें कुछ क्वेरी है तो बताइए, आई कैन टेक कपल ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ऑप्शन सेलिंग, हेजिंग एंड रिड्यूसिंग द मार्जिन। एक क्वेश्चन आया है, कैन वी डू हेजिंग यूजिंग आईसीआईसी डायरेक्ट? डेफिनेटली आप हेजिंग कर सकते हो। मैंने ऑब्स्ट्रक आपको एग्जांपल इसलिए दिया कि इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड हियर। मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स अलाउ यू टू डू हेजिंग, आईसीआईसी डायरेक्ट में डेफिनेटली आप कर सकते हो। इनफैक्ट आईसीआईसी डायरेक्ट में आपको हेजिंग करने के लिए या मार्जिन रिड्यूस करने के लिए अच्छे ऑप्शंस है। उसका क्या मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। सर मैक्सिमम प्रॉफिट विल ओनली बी 3760 इवन इफ मूवमेंट इज हायर। ओके, आई विल कम टू दिस। अभी देखिए ये आप सेल कर रहे हो। ओके, लेट्स से यू वांट टू सेल दिस पोजीशन।
यहाँ पे दिखाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपको बेसिकली बताने का पॉइंट ये है कि आप हेजिंग करने के लिए, लेट से आपने 116 का पुट सेल किया है और आपको हेजिंग करने के लिए पुट बाय करना है लोअर वैल्यू का, तो आप 19,200, 19,100 कितना भी नीचे जा सकते हो। यू कैन गो टू 19,000 ऑल्सो। अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो है वो आपको डीप आउट ऑफ द मनी जाना अलाउ नहीं करते। ओके, लेट से अगर आप जीरोदा में ट्राई कर रहे हो सेम थिंग, तो आपको जीरोदा जो है वो 19,200 के नीचे जाने नहीं देगा। ओके, या 19,150 के नीचे जाने नहीं देगा। वैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देता है कि आप कितना नीचे का प्रीमियम आपको बाय करना है फॉर द हेजिंग पर्पज और फॉर द मार्जिन पर्पज। स्पेशली अगर आप सिर्फ मार्जिन के लिए ले रहे हो, तो आप जितना लोअर लोगे उतना अच्छा है। ओके, जैसे अगर आपको 10 रुपए का आप बाय कर रहे हो, तो इससे आपको रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं होगा, बट आपको मार्जिन का बेनिफिट फिर भी मिलेगा। तो आई शो यू दैट इन द एग्जांपल हियर। देखिए अभी हमने क्या किया है कि 37 रुपीज का पी बाय किया, उससे हमारा मार्जिन रिड्यूस हुआ है। इंस्टेड ऑफ 37 रुपीज अगर आप इससे भी छोटा प्रीमियम बाय करते हो, लेट्स यू गो टू 19,000, ये 37 है, लेट्स से आप 10 रुपए का बाय कर रहे हो, तो इसमें आपका प्रॉफिट वैल्यू बढ़ जाएगा। जैसे मैडम ने पूछा कि प्रॉफिट यहाँ पे कम दिख रहा है, तो दिस इज अनदर ऑप्शन दैट वी कैन डू। देखिए यहाँ पे आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गया है, प्रीमियम थोड़ा बढ़ गया, इंस्टेड ऑफ 30,000 अभी आपको 43,000 लग रहा है, बट फिर भी 1,05,000 के कंपेरिजन में आपको फिर भी 43,000 का प्रीमियम देना पड़ रहा है। आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट या प्रॉफिट वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ गया। जो पहले 3,760 था, ये अभी 5,000 के ऊपर चला गया, बट देखिए मैक्सिमम लॉस भी बढ़ गया है। ओके, अभी यहाँ पे मैक्सिमम लॉस जो है वो पहले जो 8,000 रुपये था, यहाँ पे मैक्सिमम लॉस है 22,000। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका डायरेक्शन बराबर है, तो आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग मार्जिन और रिड्यूसिंग प्रीमियम, ये लोअर वैल्यू का आप प्रीमियम बाय कर लो फॉर क्रिएटिंग मार्जिन। बट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, बट आपका मार्जिन भी कम हो रहा है। ओके, अभी देखिए ये जो है, ये ट्रेड्स नॉर्मली 1 वीक ड्यूरेशन के रहते हैं। अगर आप 40,000 के ऊपर 1 वीक में 2,000 3,000 रुपये प्रॉफिट निकाल सकते हो विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, तो अच्छा है। फ्रॉम द परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू यू आर एबल टू मेक अ डिसेंट मंथली रिटर्न्स। तो मैडम आपका जो पॉइंट था कि कम प्रॉफिट हो रहा है इसमें, तो कम प्रॉफिट नहीं है। इफ यू आर यूजिंग दिस स्ट्रेटेजीज ऑन मंथली बेसिस, यू कैन जनरेट बेसिकली डिसेंट प्रॉफिट। ठीक है, एनी अदर क्वेरी ऑन दिस? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑप्शन ट्रेडिंग का, टू डिसाइड द एक्सपायरी डेट, टू डिसाइड द स्ट्राइक प्राइस, टू टेक अ हेज पोजीशन। ओके, तो ये तीन चार चीज अगर आपको समझ में आ गई, तो आपका ऑप्शन ट्रेडिंग का फाउंडेशन या बेसिक्स पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। फिर आगे इसमें बहुत सारा है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको अभी आई होप ये ऑप्शन बाइंग और सेलिंग का डिफरेंस ध्यान में आ गया होगा। मार्जिन कैसे क्रिएट करना है ये भी आपके ध्यान में आ गया होगा, एंड हाउ टू मैनेज द सेल ट्रेड पोजीशंस, ये भी मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो बेसिकली आप जब भी ऑप्शन में ऐसा पोजीशन लेते हो, हेज पोजीशन, जिसमें आपने प्राइमरी पोजीशन सेल किया हुआ है एंड सेकेंडरी पोजीशन जो है आपने मार्जिन के लिए लिया है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए लिया है, तो जब भी आप ये पोजीशन क्लोज करोगे, तो आपको पहले जो सेल वाला पोजीशन है उसको क्लोज करना है, और उसके बाद में जो बाय वाला पोजीशन है उसको क्लोज करना है। आप उल्टा मत कीजिए, अगर उल्टा करोगे तो आपका पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगा। ओके, क्योंकि अगर आप बाय पोजीशन पहले बेच दोगे, तो ऑब्वियसली सेल के लिए मार्जिन ज्यादा लगेगा। आपके अकाउंट में मार्जिन है तो ठीक है, अदरवाइज यू विल हैव अ मार्जिन इशू।
So that's how you basically close a sale position. Let's move to the next point. तो ये समरी है हमारे डिस्कशन का, क्वाइट इंपॉर्टेंट. तो जब आपको डायरेक्शन प्रॉपर लगता है, क्लियर लगता है कि आपको आप आई मीन बेसिकली देखिए, आपको जो भी पोजीशन लेना है वो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से लेना है. आपका टेक्निकल एनालिसिस अगर अच्छा है, स्ट्रांग है, तो ये आप प्रॉपरली ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हो. तो एज पर योर टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो यू हैव द बाय ऑप्शंस, यू बाय अ कॉल. अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जा रहा है, तो यू बाय अ पुट ऑप्शन एंड विद स्मॉल प्रीमियम यू कैन मेक अ गुड प्रॉफिट. सेल ऑप्शंस जो है, अगर आपको लग रहा है कि लेट्स से अगर निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, निफ्टी अगर आपको लगता है ऊपर जाएगा, तो आई मीन अंडरलाइन का प्राइस राइज हो रहा है, तो यू कैन डू अ सेल. सिमिलरली अगर अंडरलाइन का प्राइस फॉल हो रहा है, तो यू कैन सेल अ कॉल ऑप्शन. ओके, तो दीज आर द बेसिक ट्रेड्स दैट यू कैन टेक. अभी इसमें एडवांस स्ट्रेटेजीज जो है, then there are spreads, bull spreads, bear spreads, calendar spreads, triangles, straddles, etc. These are all advanced strategies of options trading जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेंगे. बट अगर आपका फाउंडेशन अगर क्लियर है, एंड बेसिकली दिस इज द समरी ऑफ द बेसिक ट्रेड्स दैट वी कैन ट्रेक इन ऑप्शंस. ओके, तो ये चार्ट थोड़ा समझ लीजिए, प्लीज फोकस ऑन इट, टेक अ प्रॉपर लुक एट इट. अगर इसमें कुछ क्वेरी है तो लेट मी नो, और वी कैन मूव अहेड. There is a question about option geeks. So option geeks कैसे रोल प्ले करते हैं? देखिए, ऑप्शन गिग्स इज एन एडवांस कंसेप्ट. सो फॉर बेसिक ट्रेडर्स दैट्स नॉट रियली रिक्वायर्ड, बट आई विल कवर दैट इन दी अपकमिंग सेशन. तो बेसिकली डीके जो मैंने पॉइंट बोला था, दैट डीके इज रिलेटेड टू ऑप्शन गिग्स. ओके, एंड डीके इज एन वेरी इंपॉर्टेंट, डीके प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑप्शन ट्रेडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स मूव ऑन. Some tips I want to share when you are doing option trading. As I mentioned earlier, sellers normally win in option trading. सेलर का विनिंग प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 66%, 67%. बायर का विनिंग प्रोबेबिलिटी इज 32%, 33%. सो ऑप्शन सेलिंग आपको मास्टर करना जरूरी है अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना है. ट्रेड विद द ट्रेंड. अगर मार्केट बुलिश है तो आपका आपका ट्रेड बुलिश रखिए, अगर मार्केट बेरिश है तो आपका ट्रेड्स बेरिश रखिए. ऑफकोर्स ट्रेंड आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं है, एंड इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट द ट्रेंड, एंड दैट हैपेंस लॉट ऑफ टाइम्स कि ट्रेंड क्लियर नहीं है, तो फिर आपको अलग अलग ऑप्शन स्ट्रेटेजी यूज करना पड़ता है. ऑलवेज ट्रेड विद हेज. कभी भी नेकेड पोजीशन मत लीजिए, अनलिमिटेड लॉस वाला सिनेरियो मत रखिए. दैट इज ऑलवेज अवॉइड, दैट शुड बी ऑलवेज अवॉइडेड. पहली बात तो नेकेड पोजीशन लेना नहीं है. इनकेस आपने लिया है, इंट्राडे ट्रेडर्स बहुत बार लेते हैं, तो नेकेड पोजीशन को कभी ओवरनाइट कैरी मत करना. सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. पेपर ट्रेडिंग ट्राई कीजिए अगर आप नए हैं, अगर आपको सीखना है ऑप्शंस ट्रेडिंग, तो यू कैन गो फॉर पेपर ट्रेडिंग. ये ऑप्स्ट्रा जो मैंने आपको साइट दिखाया है, पेपर ट्रेडिंग सपोर्ट करता है. सो ऑलवेज रिकमेंडेड दैट यू स्पेंड कपल ऑफ मंथ्स टू 3 months इनिशियली इन पेपर ट्रेडिंग. एक ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है फोमो का, फियर ऑफ मिसिंग आउट. कभी भी गड़बड़ में कोई ट्रेड मत दीजिए, आपको लगता है कि अरे मेरा अपॉर्चुनिटी मिस हो रहा है, ये हो रहा है, वैसा हो रहा है. सो डोंट डू दैट. मार्केट इज देयर ऑल द ईयर. साल भर मार्केट चलता है, हफ्ता भर मार्केट चलता है, तो रोज अपॉर्चुनिटीज आती है. कभी भी किसी भी ट्रेड में गड़बड़ करके, हड़बड़ाहट करके एंटर मत कीजिए. So I've covered most of the details. अभी I would like to tell you about RGS Alpha. RGS Alpha अपना एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे हम लोग काफ़ी सारी लर्निंग इन्फॉर्मेशन, मार्केट अपडेट्स एक्सेट्रा शेयर करते रहते हैं. ये जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और अगर आप जो ट्रेड्स ले रहे हो ऑप्शंस के, you will find all the relevant information about how to take those trades in this group.
तो ये फ्री ग्रुप है. आई सजेस्ट एवरीबडी टू ज्वाइन दिस ग्रुप. यू कैन जस्ट स्कैन दिस QR कोड एंड ज्वाइन द RGS अल्फा ग्रुप. ओके. सिमिलरली आप मुझे ट्विटर के भी फॉलो कर सकते हो. ये मेरा ट्विटर हैंडल है. आई कीप ऑन गिविंग इंपॉर्टेंट अपडेट्स ऑन ट्विटर ऑल्सो. ये RGS अल्फा ग्रुप का आप खुद भी बेनिफिट दीजिए. आपके फ्रेंड्स के साथ में, कॉन्टैक्ट्स के साथ में इसको शेयर कीजिए. इट्स रियली यूजफुल फॉर एवरीबडी. अगर आप रिलीजियसली फॉलो करते हो, इट्स ऑल इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसी के ऊपर आप अच्छा प्रॉफिट भी निकाल सकते हो. RGS कंसल्टिंग की कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज भी है. वी ऑफर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ऑन प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस. एडवाइजरी सर्विसेज है विच आर ऑन फिक्स चार्जेस. क्वार्टरली फिक्स रिटर्न सर्विसेज है, ट्रेनिंग सर्विसेज है. तो इन सर्विसेज के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी. दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट लिंक्स. ये वेबसाइट्स आप ध्यान में रखिए. एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, इसमें आपको काफी सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगी. investing.com है, ट्रेडिंग व्यू है, मनी कंट्रोल है, ट्रेडट्रॉन इज अल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. फॉर ऑप्शंस ट्रेडिंग, दिस ऑप्शंस एस्ट्रा एंड क्वांट्सएप, दिस टू वेबसाइट्स और एप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप डेफिनेटली उनको यूज कीजिए. These are my coordinates. Anybody wants to get in touch with me, you are वेलकम टू कॉन्टैक्ट मी. ये RGS फॉर प्रॉफिट हमारा यूट्यूब चैनल है. तो डेफिनेटली यूट्यूब चैनल को आप शेयर सब्सक्राइब कीजिए. जो भी वीडियोस है उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. तो दैट विल हेल्प मी टू बेसिकली क्रिएट बेटर एंड बेटर वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू. ओके. So again, if there are any last questions, I can take it or we can stop it here. एक क्वेश्चन आया है, सर आपका नेक्स्ट सेशन फ्री रहेगा या कब एडवांस्ड ऑप्शंस ट्रेडिंग का? तो बेसिकली देखिए, उसमें जो स्ट्रेटेजीज वगैरह है, दैट आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट सेशन, स्ट्रेटेजीज एंड ऑप्शन गिग्स एक्सेट्रा. बट उसमें अल्टीमेटली जो आपको स्ट्रेटेजीज क्या बनाना है, मैं आपको स्ट्रेटेजीज तो दिखा दूंगा, बट कौन सी स्ट्रेटेजी कब यूज करना है एज पर द टेक्निकल एनालिसिस, एज पर द ट्रेंड, वो सब के लिए आपको पेड ट्रेनिंग अटेंड करना चाहिए, विच आई विल बी हैविंग सून. तो जब पेड ट्रेनिंग रहेगा मैं बताऊंगा आपको. But the next session for covering the next part of options trading, that will be free of cost, not a problem. Okay. चलिए, so thanks again everybody for joining, and hope you found this video useful. I wish everybody profitable trades. Thank you very much. Good day. Bye.